ابھی آپ کی خدمت میں حاضر تفصیلات سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ پلوامہ پامپور میں خاتون کی پراسرار موت، اہل خانہ نے لگایا سسرال والوں پر قتل کا الزام، پولیس کی طرف سے کیس درج، تحقیقات شروع۔ وادی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہوئی تازہ برف باری، آج دوپہر سے موسم میں بہتری آنے کا امکان، 12 اور 13 جنوری کو بڑے پیمانے پر بارشوں اور برف باری کی پیش گوئی۔ مشہور ادیب و شاعر پروفیسر رحمان راہی کا ہوا انتقال، ادبی برادری میں ماتم کا ماحول، کئی ادبی، سیاسی و سماجی لیڈروں نے دکھ کا کیا اظہار۔ اور برازیل کے سابق صدر کے حامیوں کا پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ، برازیل کے صدر سے استعفی کا کیا مطالبہ۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ سب سے پہلے بڑی اور اہم خبر کو لے کر بات کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کل جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کی پامپور کے کدلبل علاقے سے تعلق رکھنے والی 40 سالہ خاتون کی اس کے سسرال میں پراسرار حالت میں موت ہو گئی، جس کے بعد اہل خانہ نے سسرال والوں پر الزام لگایا کہ اسے مبینہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو بے ہوشی کی حالت میں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پامپور لے جایا گیا، جہاں پہنچنے پر اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ اس کی موت کے فوراً بعد اس کے گھر والوں نے احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ مبینہ طور پر اسے اس کے سسرال والوں نے قتل کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس نے کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہے۔ تاہم مزید تفصیلات کے لیے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں پلوامہ پامپور، جہاں ہماری نمائندے کوثر اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ کوثر، کیا کچھ پورا معاملہ تھا، تفصیل سے بتائیے گا۔ جی بالکل ظہور، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ٹائم میں موجود ہوں کدلبل پامپور میں، جو کل یہاں پہ ایک لیڈی کی موت ہوئی تھی، اس کے بعد اس کے لواحقین نے پروٹیسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ان کے سسرال والے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس نے 174 CRPC کے تحت انویسٹیگیشن شروع کی تھی، تو ابھی بھی تحقیقات جاری ہے، جس میں کچھ لوگوں کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا ہے پوچھ تاچھ کے لیے۔ تو پولیس کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پوری پکچر سامنے آئے گی، اس میں یہ پتہ چلے گا کہ یہ واقعی میں قتل ہے کہ یہ کچھ اور ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی کیا مسئلہ ہوئی رات یہ رات لگ بھگ 4 بجے بیم صبح ہمشیر تو لگ بھگ 4 بجے 4:30 5 بجے آو اس فون گھر پہ کتان تو اس کور ہمشیرس فون مجھے کیا دل خرچ کیا بامرمت ونے مے ماں سہ امس ونان دیدی دیدی اپر گمت لڑائی تو سہ نیک ہسپتال تو اس ون پاے کہین آئے اور اس بیم صبس تم سو فون ووت نا کتان کہین آئے اور اس کیا دل وچ ڈیڈ باڈی اس ون یہ کت کن ونان ہارٹ اٹیک ونان کیا تھان اس چلو تو ات ہسا وچ ہٹس پہ نشان اگر ہارٹ اٹیک بہ سا مانت مگر نشان کتہ آو تیل ہارٹ اٹیک مثال اگر ہارٹ اٹیک بہت مانت ہارٹ اٹیک تو نشان کپر آو اگر مثال طور مرڈر کرو تو مگر ژے امس کپر کمل پہ مثال ہسبینڈ ونان بہ سا آوس 2 بجے بتہ کھین اور پتہ ہسا درٛاوُس بہٕ بیٚیہِ واپس مےٚ ہسا ٲس نِش گٔمٕژ ماتامال تٔمۍ کوٚر مےٚ فون ابوٗ پاپا ہسا چھُ یِتھ کٔنۍ دٔلیٖل پاپا ہسا چھِ مٔمی ہسا چھِ مانس موٗمینٹ کران کہین یہ موٗمُت تٔمۍ چھُ تھٲومٕژ گٲڑۍ أتھی کتٮ۪ن چھِ تٔمۍ گٲڑۍ تھٲومٕژ أتھی سُہ چھُ آمُت دوران اگر 4 بجے واقع گوٚو یا 5 بجے واقع گوٚو سُہ گوٚو 2 بجے بتہٕ کھٮ۪تھ یہِ کیٛاہ مایا پانے اگر یہ ہارٹ اٹیک گوٚو امیُک رپورٹ ون تان آو نہٕ رپورٹ امیُک کہین پولیس چھِ کاروٲیی کران پولیسس اپیل یِوان کرنہٕ امیُک کاروٲیی کٔرِو جلدی یہ موسم کوٗر أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ونکیٚس کیٛازِ یہِ چھُ پانہٕ میرے ساتھ یہاں پہ اس کی بیٹی بھی موجود ہے، مزید ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوثر ان سے پوچھے گا کہ کیا جب انہوں نے لاش دیکھی تو کیا لاش پر کچھ نشانات تھے؟ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ اس پہ لاش پہ نشانات ہیں، مزید ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بیٹی ہے میرے ساتھ تو اس سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی بات کیجیے ان سے۔ پنن ناو بیٚیہِ ؤنۍتو کیٛاہ دٔلیٖل تۄہہِ کیٛاہ وٕچھوٕ اَتہِ؟ مےٚ چھُ عایت ناو تمال بہٕ تٔرٕس وۄنۍ گرٕ الویٹس دارِ بنٛد تہٕ پتہٕ ژایس بہٕ اندر دروازٕ تھوٚوُس یلے پتہٕ یُتھُے بہٕ وٕچھ مٔمی تہٕ مطلب یہِ چھِ شٔنگِتھ کمرٕ تلُک چیٖز چھُس
तुल अमस वुथन भी निजार गर्दन पे निशान पत क्या करू तुम कर्वा कंस फोन मलिस कर्वा तुम फोन तिमो क्या कोर पत कर पापस फोन तो पता आव पाप जल्दी तम ब्रोट वन क्या तुहज अपील पुलिसस मे शक अकिस पे सह मे पफ्तुर बोय तो बे तम मोर सह धमकी पे धमकी दिवान धमकी पे दिवान तो सह दपान बह मारो तुम क्या धमकी दिवान तुम क्या धमकी दिवान क्या पाप दपान ज कर ड्रग्स क्या अच्छा सह ड्रग्स करान ड्रग्स करान जी बिल्कुल ज़हूर, आपने सुना कि इनका कहना है कि जो इसका पफेरा भाई था वो ड्रग्स लेता था, तो इसका जो बाप है वो बार बार उसे मना कर रहा था। तो इनका जो खदशात है, ये कह रहे हैं कि कत्ल उसी ने किया होगा, लेकिन अभी पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जी ज़हूर। कौसर, क्या इस हवाले से लाश का जो पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है? जी बिल्कुल, कल शाम को उसका पोस्टमार्टम किया गया और अभी रिपोर्ट नहीं आया, बल्कि वो दो तीन दिनों के बाद रिपोर्ट आएगा। तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, वो भी पूछताछ कर रही है। तो अभी फिलहाल ये इल्ज़ाम है, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई में कत्ल है या कुछ और। तो लोगों को भी इत्मीनान रखना चाहिए, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, तो वो भी पूछताछ कर रहे हैं लोगों से। क्या इस हवाले से अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है और पुलिस का क्या स्टेटमेंट आया है? हमारे पास खबर आ रही है कि पुलिस ने लोगों को घर पे बुलाया है और उनसे पूछताछ जारी है। जी ज़हूर। और हमारा एक जी मेरे साथ कुछ ये और बंदे भी है, वो भी इसमें बात करना चाहते हैं। हमारा और एक अपील है, क्योंकि अगर ये कश्मीर हिंदुस्तान में हर चीज लागू है, कश्मीर में फांसी लागू क्यों नहीं है? हर जगह यहाँ पर मर्डर हुए, बहुत जगह से हुए, आज तक फांसी यहाँ पर लागू नहीं हुई है। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, यहाँ पर भी फांसी लागू किया जाए। पानस खून कड़ान दाल वाला पानस में बच्चे नख वालान पे नख वालित कर्ज फर्ज करान पे हाल बद ग यह जान गसान सारे पापरस अपील करान यम कर मदद लुकान रिश्तेदार दिन तक रिश्त अन तक अगर यम आज कर पे मदद तो यह रुक, अगर नहीं मदद कर गम खुद बतर क्या क्या बोलो जनाब वन रुपये रात वो अमिस कल पे कमल अच्छी पता कमस पता कमस कमल किस पे पता अमिस कल पे कमल कम मरमुत मरिस मत पाने कमल पे दरवाज चल अत गसान अत सुराख पुलिस छानबीन कर कन कदम तुलान अत सुराख वन क्या तुज अपील कर पुलिस जल्द से जल्द रपोर्ट बे कातिल पेश कर। कौसर ये बताइएगा कि क्या लाश को दफनाया गया है? जी कौसर ये बताइएगा कि क्या लाश को दफनाया गया है? जी बिल्कुल, कल शाम को ही उसको दफनाया गया है। तो अभी ये जो लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि जो कातिल है इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो अभी जो रिपोर्ट है वो भी अभी बाकी है, अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये कातिल है, तो पुलिस भी छानबीन कर रही है। क्या इस हवाले से ससुराल वालों का कोई बयान सामने आया है? जी अभी उनके साथ बात नहीं हुई है, लेकिन ये कहना है कि जो इनका हस्बैंड है उन्होंने कल ही बताया था कि ये कत्ल है, क्योंकि वहाँ पे जो उसका भांजा है वो उसी ने कत्ल किया, ये इल्जाम है। तो लेकिन अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये वाकई में कत्ल है, ये पता चलेगा जो रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जो पूछताछ जारी है उनसे भी पता चलेगा। आने वाले दिनों में ये सब कुछ सामने आएगा, पूरी की पूरी पिक्चर सामने आएगी कि ये वाकई में कत्ल है कि कुछ और है। जी चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शेख कौसर तफसीलात फराहम कर रही थी, तो इनका कहना था कि पामपुर में पुरअसर हालत में कल लाश मिली, जिसके बाद लवाकिन के जानिब से
ससुराल वालों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। ताहम इस हवाले से पुलिस ने केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आगे बढ़ते आपको बता दें, राजौरी डांगरी हमला के बाद और यूमी जुमूरिया के पेश नज़र राजौरी में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर नाका और आने जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग के साथ साथ शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। डांगरी हमले के बाद जिस तरह इलाके में मशकूक अफराद की नकलो हरकत देखी गई, इसके बाद हर आने जाने वाली की पूछगछ हो रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए जमशेद मलिक की रिपोर्ट। राजौरी में 1 जनवरी को हुए हमले के बाद राजौरी के चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि लगातार मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरें राजौरी के गिरद और नवाज से सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम बेला पुल पे खड़े हैं, जहां हमको आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF के एहलकार गाड़ी आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक कर रहे हैं। और कई अरसे बाद दोबारा देखा गया कि राजौरी के अंदर जो भी गाड़ी गुजरती है उस गाड़ी का नंबर भी इंटर किया जाता है। आज से 10 से 15 साल पहले इस तरह के मंजर देखे जाते थे, जहां आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ उनके नंबर नोट किए जाते थे। और दोबारा वैसे ही मंजर राजौरी के अंदर नजर आने लगे हैं, क्योंकि राजौरी के ढांगरी इलाके में 1 जनवरी को एक हमला होता है, जिस हमले में 7 लोग इस वक्त तक अपनी जानें गंवा बैठे हैं। उसके बाद देर शाम को राजौरी के बुद्दल इलाके में एक ID निस्ब की गई थी, जिसको बाद में नकारा कर दिया गया। उसके साथ साथ राजौरी की जम्मू पुंछ हाईवे पर राजौरी के राजल के पास एक खातून की तरफ से कुछ मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद वहां भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। यह है राजौरी का मंजर, राजौरी के बेला पुल के पास, जो बिल्कुल पुराने शहर को नए शहर के साथ जोड़ता है। और यहाँ के आपको ये मंजर देख सकते होंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों के साथ साथ CRPF के एहलकार भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों के बाद राजौरी के अंदर सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। चाहे राजौरी के अंदर आने वाले रास्ते हो या बाहर जाने वाले रास्ते हो, इनमें सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। राजौरी के ढांगरी इलाके में 1 जनवरी को हुए हमले के बाद राजौरी के अंदर काफी दहशत फैली हुई, और दहशत के चलते लोगों की तरफ से लगातार कई जगह से मुश्तबा अफराद के देखे जाने की खबरों का सिलसिला भी जारी है। और लोगों की खबरों के साथ ही उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। देर शाम को राजौरी के बुद्दल के डंडोर इलाके में सड़क के किनारे एक ID निस्ब की गई थी, जिसको बाद में नकारा कर दिया गया। और ID के साथ साथ राजौरी के राजल इलाके से भी इसी तरह की खबर आई थी, जहां एक खातून ने कुछ मुश्तबा अफराद को देखे जाने की बात कही, जिसके बाद उस इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी के ये मंजर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अब्दुल्ला पुल की बेला कॉलोनी के पुल के हैं, जो राजौरी पुराने शहर को नए शहर के साथ जोड़ता है। यहाँ जो भी गाड़ियां इस तरफ आ रही हैं, उनकी आने चेकिंग के साथ साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड और गाड़ियों के नंबर भी इंटर किए जा रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जम्मू कश्मीर की अदबी बरादरी में आज उस वक्त मातम का माहौल बन गया जब खबर मिली कि जम्मू कश्मीर के मशहूर और मारूफ अदीब और शायर और नक़ाद रहमान राही का इंतकाल हो गया। जम्मू कश्मीर के मायनाज अदीब और शायर रहमान राही के इंतकाल से अदबी बरादरी सोगवार है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की अदबी फिजा में एक ऐसा और रोशन सितारा थे जो एक साथ उर्दू और कश्मीरी दोनों जुबान पर अबू रखते थे, और दोनों ज़बानों में उनकी बेहतरीन शायरी और अदबी खिदमत का हर किसी ने एतराफ़ किया है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह कि जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे शायर होने का एजाज़ रहमान राही को हासिल हुआ, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सरफराज किया गया, और साथ ही साथ पद्मश्री के एजाज़ से भी उनको नवाजा गया। हालांकि रहमान राही का ज़्यादातर काम कश्मीरी ज़ुबान में है, अलबत्ता उर्दू में भी उन्होंने बेमिसाल गज़लें कही है। कहा जाता है कि रहमान राही जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे शायर थे जिन्हें दौरान हयात इस कदर पजीराई नसीब हुई कि कोई दूसरा इस दर्जे को नहीं पहुँच सका है। यही वजह कि रहमान राही के इंतकाल से एक तरफ जहाँ अदबी दुनिया में सोग का माहौल है, वहीं सियासी व समाजी गलियारों में भी दुख का इजहार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद, शमीमा आज़ाद, डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, बशीर आरिफ समेत सैकड़ों अदबी, सियासी व समाजी शख्सियात ने रहमान राही के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। आपको बता दें, वादी कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम के साथ दीगर बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि रात के दर्जा हरारत में
इजाफे के दरमियान श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई। वादी में इतवार के दोपहर से हल्के बर्फबारी का आगाज हो गए। इस दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ खिता चिनाब के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशें भी होती रही। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई किया कि 9 जनवरी यानी आज दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है। उन्होंने कहा कि 10 से 11 जनवरी तक मौसम आमतौर पर अबर आलू रहने का इम्कान है और 12 से 13 जनवरी तक बड़े पैमाने पर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी और ऊंचाई पर भारी बर्फबारी का इम्कान है। इधर बर्फबारी के नतीजे में सोनमर्ग सड़क पर फिसलन पैदा होगी, जिससे गाड़ियों को चलने में दिक्कतें पेश आ रही थी। इधर शुमाली कश्मीर कुपवारा में बाद दोपहर बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, श्रीनगर में क्या कुछ मौसम का हाल है, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मौसम की बात करें तो जिस तरीके से पहले ही पेशन गोई की गई थी कि जो 7 से लेकर 11 तारीख तक के जो बीच का जो टाइम है, इसमें कहीं ना कहीं बारिशें हो सकती है। उसके साथ साथ जो बाकी बालाई इलाके हैं वहां पे बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर हम कल से ही देखें तो श्रीनगर में मौसम जो काफी ज्यादा ठंड था, जो मतला था वो ओवरऑल आलूदा था, बादल छाए हुए थे, लेकिन बर्फबारी तो नहीं हुई। लेकिन हल्की फुल्की बारिशें जो है श्रीनगर के प्लेन एरियाज में देखने को मिली। अगर बालाई इलाकों की बात करें वहां से कल से ही बर्फबारी हुई थी, लेकिन श्रीनगर या जो बाकी कश्मीर के प्लेन एरियाज है वहां पे हल्की फुल्की बारिशें हो गई थी रात के टाइम। तो इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त थोड़ी हल्की बहुत जो है हम कह सकते हैं कि धूप भी खिली हुई है। थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर में उसमें भी थोड़ा इजाफा हुआ, नाइट की टेम्परेचर में जो है इजाफा हुआ, जो कि लगातार माइनस के नीचे चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे ही मतलब अबर आलूदा रहता है, यानी जैसे ही बादल रहते हैं तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो फर्क आती है। तो आज का हम टेम्परेचर की बात करें तो कहीं ना कहीं नुमाया जो है जाती है उसमें देखने को मिली थी। और एक अच्छी खासी हम कह सकते हैं टेम्परेचर रात का था, माइनस नहीं था लेकिन अब उधर नॉर्मल जरूर था। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त इतनी ठंडी नहीं है, थोड़ी बहुत जो है धूप भी खिली हुई है। तमाम महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई लगातार उनकी जारी है कि 9 से लेकर करीबन 14 तारीख के बीच में जो है कभी भी बर्फबारी हो सकती है और ये प्लेन एरियाज में भी होगी। उसके साथ साथ जो हाई रीच से वहां पे भी हो सकती है। तहम आज शाम से जो है कहा गया कि बर्फबारी या हल्की बर्फबारी श्रीनगर में भी होगी, या उसके साथ साथ जो प्लेन एरियाज है वहां पे भी होने के इम्कान थे। लेकिन जो आपने भी कहा कि जो इंटेंसिटी इसमें होगी वो ज्यादा नहीं होगी। इंटेंसिफाइड जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताया जा रहा है वो 13-14 के बीच में बताया जा रहा है, जिसमें अच्छी खासी बर्फबारी जो है प्लेन एरियाज में भी देखने को मिल सकती है और हाई रीच में देखने को मिल सकती है। तहम इस वक्त की जो सिचुएशन श्रीनगर की है, हल्की फुल्की जो है धूप इस वक्त खिली हुई है, सर्दी में थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन इंतजार है कि किस तरीके से बर्फ पड़ेगी और जो बारिशों का कहा जा रहा है वो कब चलेगा, उसके थोड़ा बहुत जो फर्क सर्दी में आ सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गुलमर्ग से इशफाक इस वक्त हमारे साथ है। इशफाक, क्या कुछ गुलमर्ग में मौसम है? जिस तरह से कल गुलमर्ग में बर्फबारी हुई, इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? और जहां तक महकमा मौसमियात ने पहले के साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर है और हल्की बर्फबारी के चलते यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो सर्दी जो है उसमें काफी जो है कमी महसूस की गई। वही अगर हम सयाजी मुकाम गुलमर्ग में के हवाले से बात करेंगे, सयाजी मुकाम गुलमर्ग में तकरीबन 3 इंची बर्फबारी जो ताजा बर्फबारी है वो रिकॉर्ड की गई और टंगमर्ग में जो है आधा इंची के करीब बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए काफी तादाद में बाहर से सयाह आ रहे हैं और इंतजामिया की तरफ से अब जाके जो है यहाँ पर बादल तो जो यहाँ पर जो है नाका लगाया गया और बादल तो गाड़ी को चेक किया जा रहा है और जिन गाड़ियों के पास जंजीर है उन्हीं गाड़ी को गुलमर्ग के ओर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जहां तक हम द्रंग की बात करें या दूसरे सयाजी मुकाम जो यहाँ पर है, उन्हें जो है फिलहाल वहां पर जो एटीवी राइडर्स की जो गाड़ियां हैं वही वहां जा रही है और 4x4 गाड़ियां जो है वो वहां पर जा रही है। तो इंतजामिया की तरफ से जो कोशिश की जा रही है कि सयाजी मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ जो यहाँ पर द्रंग सयाजी मुकाम द्रंग है और संसफाल है उसको विंटर में बर्फपूर जो है खुला रखा जाएगा और मशीनरी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। फिदा इस वक्त हमारे साथ है पहलगाम से। फिदा, पहलगाम में मौसम की क्या सूरत हाल है और सयाहों का क्या रश है? दो चीजें हैं, मेरे चेहरे से तो आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है धूप जो है वो निकल आई है, तो हर कोई ले रहा है लेकिन पहलगाम की बात करें तो हल्की बर्फबारी हुई है लेकिन कुछ दर्जे की बर्फबारी नहीं हुई है जिसका इंतजार हम सबको है, क्योंकि अब चिले कलाम के 40 दिन और इन 40 दिनों में अगर बर्फबारी नहीं होगी तो शायद जो अगर हम सियाहती मकामात की बात करेंगे जैसे पहलगाम आता है और जैसे कि अभी
गुलमर्ग के हवाले से बता रहे थे। लेकिन पहलगाम में इंतजार है ज्यादा बर्फबारी का, और साथ ही साथ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन धूप है, और इस धूप से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ऐसा कल लग रहा था कि कल शायद हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन अब और इंतजार करना पड़ेगा कि कब बर्फबारी होगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बर्फबारी होनी चाहिए, और इस तरह की बर्फबारी होनी चाहिए कि ताकि आने वाले वक्त में यहाँ पर पानी की किल्लत ना हो। लेकिन अब चूंकि मौसम का मिजाज, और इस मौसम के मिजाज में लोग फिर भी फरन पहने हुए, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है, और फरन के साथ साथ कांगड़ी का इस्तेमाल जो है वो सबसे ज्यादा होता है चिले कलां के 40 दिनों में। और इन सर्दियों पर सबसे ज्यादा असर जो है वो छोटे बच्चों पर पड़ रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो सुबह निकलते नहीं है, क्योंकि जब अगर वो ट्यूशन के लिए भी जाएंगे तो ट्यूशन के लिए भी वो 10 बजे के बाद ही उनका टाइमिंग जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर बालाई इलाकों की बात करेंगे, बालाई इलाकों के लोग इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में बर्फबारी होगी। अगर बर्फबारी होती है तो लोग उसका लुत्फ उठाएंगे, अगर बर्फबारी नहीं होगी तो शायद लोग कहेंगे कि चिले कलां इस बार हमसे रूठा हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। पहलगाम से फिदा हुसैन तफसीलात फराम कर रही थी। इनका कहना था कि इस वक्त धूप खिली हुई है, लेकिन इधर महकमा मौसमियात की जानिब से 12 जनवरी के बाद ये पेशन गोई है कि मौसम में फिर से तब्दीली आ सकती है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि ब्राज़ील में साबिक सदर जेर बोल्सोनारो के हामियों ने पार्लियामेंट की इमारत पर हमला करते हुए नए मुंतखब सदर दासलुआ से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक साबिक सदर के हामियों ने सदारती पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की इमारत का घेराव करके तोड़ फोड़ की और नए सदर के खिलाफ नारे लगाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सरकारी इमारतों से कब्जा छिड़ाकर इलाके को सील कर दिया है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 400 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। मुकामी मीडिया का कहना है कि सदर दासलुना ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया में मुजाहिरीन के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। दूसरी जानिब अमेरिका, फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा ने ब्राज़ील में कांग्रेस इमारत पर हमले की सख्त अल्फाज मजम्मत करते हुए कहा कि जमहूरी इदारों पर हमले नाकाबिल कबूल है। शुमाली कश्मीर जिला बारामूला पट्टन रहने वाले लोगों ने कहा कि इस इलाके में पानी की टैंकियां काम नहीं कर रही है, जिस वजह से लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये टैंकियां 10 साल से पहले बनाए गए थे, ताहम इन्हें आज तक फाल नहीं बनाया गया, जिस वजह से इलाके में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने इस हवाले से इंतजामिया से अपील की है कि इस मसले की तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों की मुश्किलात हल हो सके। गई 5-7 वरी बन आबन वो जन अच्छो अत गई 7 वरी बनमस अत टोटली कर प्रुसगर ये पाइप न खास वन त्राम कह त्राम वन टोटल कोर्मुत कहें कर ये पोस जाय क्या पोस जाय क्या शगाम 5-6 गाम ये पे 5-6 गाम तुम क्या बना आब महकमा मगर दौरा कर खास कहें पलान पे त्रेश खर कल साफ आब कह यह कंपच बसान मकरियत वकरियत आसान सत गई लगभग 7 वरी गई बन 5-7 वरी 2013 में बनोम ये। मेरा नाम यासिर है, मैं यहाँ विलेज अगलर से हूँ। हमारे यहाँ जो है वाटर सप्लाई स्कीम जो है ना 2013 में इसका इनाग्रेशन हुआ था, और ये ओवरहेड टैंकियाँ बनी थी जो हमारे पीछे देख रहे हो आप, अगलर में, लोलीपुरा में, गोशाबुक में और वसन में। लेकिन बदकिस्मती से जो है ना 2013 से 2019 तक इसका काम बिल्कुल रुका हुआ था। अब काम शुरू हो गया, लेकिन काम जो है वो कछुए की तरह चल रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ कैमरा घुमाइए, हम लोग पीते क्या है, हम लोग जो है टिलर ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, वो ये नाली यहाँ से नाली बह रही है बस। 20वीं सदी में 21वीं सदी में हम 21वीं सदी में हम इस नाले का पानी पीते हैं, और हमें कितना सफ़र करना पड़ता है या आप इस वक्त देख ही रहे हैं। आपके माध्यम से हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हम क्या पी रहे हैं और हमारे कितना सफ़र कर रहे हैं। हमारे सर्दियों में इस ठंडे मौसम में हमें आज भी रेडियो से, टिलर से, ट्रैक्टर से पानी ले जाना पड़ता है घरों में। आज से
7 साल 5 साल पहले बनी है, 6 साल पहले, 10 साल हो गए इसको, 10 साल 2013 में बनी है सर ये। और आप देखो 2013 इस वक्त हो गया 2000 कितने साल हो गए और ये बिल्कुल किसी काम की नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हमें पानी की सर। तो अब हम सफ़र कर रहे हैं पानी का, इतना यहाँ पे पानी का फुकदान है मैं क्या बताऊँ। और रोड देखो सर, हमारे रोड्स भी देखो कितने इनर लिंक्स हमारे कितने खराब है। बिल्कुल PHU वालों ने खुदाई करके पाइपें तो डाल दी अभी, एक साल पहले आप देख सकते हैं ना, ऊपर बिल्कुल ऊपर ही है, बिल्कुल ऊपर ही है। और आप देखो हमारी सड़कों क्या हाल है आज। जिला अस्पताल रामबन में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की दस्तयाबी पर लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की दस्तयाबी से यहाँ के मरीजों को अब जम्मू या श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है और अब न सिर्फ उनका वक्त और तवानाई बचाई जा रही है बल्कि PM सेहत स्कीम के तहत मुफ्त इलाज किया जा रहा है। सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मामा रफ़ी के मुताबिक इन सर्जरी के आगाज़ से लेकर अब तक 20 के करीब सर्जरियाँ कामयाब हो चुकी है जो यहाँ से मुंसलिक हो चुकी है, जिससे मरीजों को ख़ासतौर पर दूर दराज की पहाड़ी देहातों के गरीबों को बड़ा रिलीफ मिला है। मरीजों ने इस सहूलत के हवाले से बात करते हुए कहा कि यह हमारे आबाई ज़िला में गरीबों के लिए हुकूमत की तरफ से एक बड़ी सहूलत है। मेरा नाम डॉक्टर यासिर अरफात है। मैं रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ एज मेडिकल ऑफिसर विद स्पेशलिटी इन जनरल सर्जरी। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली डॉक्टर सलीमुर रहमान का, हमारे CMO साहब डॉक्टर कमल जी जड्डू का और हमारे मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर महबूब खान साहब का, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि मैं यहाँ पे ये स्टेप ले सकूँ और इसकी शुरुआत कर सकूँ। तो यहाँ पे सिस्टम तो लेप्रोस्कोपी का पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन ये है कि 8-10 साल से वो यूज़ में नहीं था। तो हमने कोशिश की कि उसको यूज़ में लाने की, जो उसमें डेफिशिएंसीज थी वो हमने कुछ। मेरा नाम जाकिर अहमद भाट है, मैं वेरीनाग से हूँ। हम काम करने के लिए यहाँ आते हैं 1-2 महीने सर्दियों में। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो मुझे दर्द अचानक शुरू हुआ रात को, और रात में बहुत ज़बरदस्त दर्द था। फिर जैसे ही सुबह हम OPD में पहुँचे डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब ने आते ही समय पहली कंसल्टेशन जो पहला ही डायग्नोज किया कि आपकी सर्जरी होने वाली है। तो बिना टेस्ट के ही डॉक्टर साहब ने ये बता दिया कि आपकी सर्जरी हो पाएगी। और फिर इसने हमें CT स्कैन के लिए और बाकी CBC KFT LFT सब टेस्ट करवाने के लिए कहा। तो सारे टेस्ट करके फिर डॉक्टर साहब ने उसी टाइम की कल सुबह या कल दोपहर को आपकी सर्जरी होने वाली है। तो कल दोपहर 12 बजे के बाद मेरी सर्जरी। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।